Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात, Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Close our eyes. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace, यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के for लिए, all His blessing, उसके सारे आशीर्वादों के लिए for all His love. और उसके पूरे प्रेम के लिए। He gave Himself for us. उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। To save us, He has shed His blood. हमें बचाने के लिए उसने उसका लहू बहाया है। Mighty Jesus Christ, we worship you. सामर्थी यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते We हैं। love you. हम आपसे प्रेम करते And we हैं are your people. और हम आपके लोग हैं। We bow down ourselves before you. आपके सामने हम अपने आप को झुकाते हैं। Once again, we commit our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते Thank हैं। you for once again gathering us. फिर से एक बार हमें इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद। Bless us, Lord, प्रभु हमें आशीष दो। as we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, Open our ear, हमारे कान खोलो, touch our ear, हमारे कानों को छू लो, so that we can listen you. ताकि हम आपको सुन पाए। Give us understanding heart, हमें समझने वाला हृदय दो, so that we can understand you. ताकि हम आपको समझ पाए। Open our eyes, हमारी आंखें खोलो, so that we can know you. ताकि हम आपको जान सके। Touch each one, हर एक को छू लो। as we are preaching your word, जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे as we are हैं, meditating your word. जब हम आपके वचन पर मनन कर रहे Talk हैं, with us. तब हमारे साथ बात करो। Father, I pray for each one, bless each one पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आशीष दो with your truth, आपके सत्य से, with your blessing. आपके आशीषों से। Holy Spirit, minister unto us. पवित्र आत्मा हमें चलाओ। And we believe you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते We pray हैं। in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Let's say amen. आइए आमीन कहें। आमीन। आमीन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today we are going to study about soldiers. आज हम सैनिक के बारे में अभ्यास So करेंगे। sit properly. तो अच्छे से बैठो। Praise God. परमेश्वर का Christian people महिमा हो। are soldiers of God. ईसाई लोग परमेश्वर के योद्धा है, सिपाही है। And so there are Salvation Army. There is Salvation Army in this world. इसीलिए इस संसार में मुक्ति फौज भी है And they have captain. और उनके कैप्टन भी होते हैं There is colonel. और उनके कर्नल भी होते हैं, Major. मेजर भी होते Not हैं। minor. They are not minor people. They are major people. वे लोग छोटे या नीचे लोग नहीं है, वे लोग मेजर हैं, ऊंचे हैं। Amen. आमीन। We are just soldiers. We are not captain. हम केवल सिपाही है, हम कैप्टन नहीं। Our captain is Jesus Christ. हमारा कैप्टन यीशु मसीह है। Our king is Jesus Christ. हमारा राजा यीशु मसीह है। We are small kings. हम छोटे राजा है। When Jesus Christ, he was handed over, he was brought before Pilate. जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया, John 18:36, it says, this Pilate, he asked, are you king, O Jesus Christ? तो ये पिलातुस ने उसे पूछा कि हे यीशु मसीह, क्या तू राजा है? And Jesus said, my kingdom is not of this world. और यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। If my kingdom were of this world, then would my servant would fight for me. यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक मेरे लिए लड़ते। So Jesus said, my kingdom. तो यीशु ने कहा मेरा राज्य। And also Jesus said, my soldiers, my servants. और यीशु ने यह भी कहा मेरे सिपाही, मेरे सेवक। The word is not servant here in Greek, it is huperetes. यूनानी भाषा में यहाँ सिपाही सेवक शब्द नहीं है, लेकिन ह्यूपेरेटिस यह शब्द है। It means officer who execute the penalty. उसका अर्थ होता है कि ऐसा आगेवान जो सजा दे सके, ऐसा आगेवान। Yes. If my kingdom would be on this of this earth, my soldier would fight. यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेनापति, मेरे सिपाही लड़ते। Like constable, small officer. जैसे छोटे जमादार होते हैं, सेनापति होते हैं, उनके जैसा। So Jesus said, I am kingdom, my kingdom तो is not of this world, यीशु ने कहा मेरा राज्य इस जगत का नहीं, but I am king. लेकिन मैं राजा हूँ And for that I am born. और उसी के लिए मैं जन्मा हूँ। So we believe Jesus Christ is king. Let's confess. तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह राजा है, आइए कबूल करें। Jesus is my king. यीशु मेरा राजा Jesus है। is my king. यीशु मेरा राजा Jesus is है। my king. यीशु मेरा राजा I है am his soldier. और मैं उसका सिपाही हूँ Shout, and I am his soldier. और मैं उसका सैनिक हूँ।
Yes, I'm a soldier. मैं उसका सैनिक हूँ। Yes, amen. आमेन। You might not know if you are went in Salvation Army. They shout like a top. they shout like, तो फायर। तोप चलाओ। yeah. They say no. Yeah. Open a tank and shout. Give praise to Lord. आप शायद आपको पता नहीं होगा, यदि आप मुक्ति फौज में जाओ तो वे लोग ऐसा कहते हैं कि अपनी तोप चलाओ और चिल्लाओ। Not that top. Not that back tank. Your mouth. Open your mouth and shout. कि वह उसका अर्थ है कि अपना मुंह खोलो और चिल्लाओ। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So we are His soldier. तो हम उसके सिपाही हैं। Paul every time said to like that he is in army. He's every time preach that we are in army. पौलुस ने हर बार ऐसा कहा कि वह एक सैन्य में है और हम भी सैन्य में हैं। Church is an army of God. कलीसिया परमेश्वर के सैन्य में है। And so Paul said, Timothy in 2 Timothy, 2nd chapter verse 3, Paul says, "Oh Timothy, be a good soldier." इसीलिए पौलुस ने तिमोथी से कहा, दूसरा तिमोथी का पत्र 2 अध्याय 3 वचन, कि हे तिमोथी तू अच्छा योद्धा बन। When we listen army and soldier, we just be alert and we be what we say, we be alert. जब हम ऐसे शब्द सुनते सेना या सिपाही के बारे में तो हम चौकन्ने हो जाते, सावधान हो जाते Yes, हैं। सावधान, yes. Are you soldier? क्या आप सिपाही हो? Did you ever saw soldier? They never sit like this. क्या आपने कभी कोई सिपाही को देखा? वे कभी ऐसे नहीं बैठते हैं, They sit properly. वे ऐसे टकटार बैठते हैं। So Paul is preaching to Timothy, not to us. तो पौलुस तिमोथी से प्रचार कर रहा है, हमसे नहीं, Be good soldier. कि अच्छा योद्धा बन। And this Timothy, he said, yes sir. और यह तिमोथी ने कहा, हाँ मालिक। What is a good soldier? We are all soldiers, but what is a good soldier? What is the definition of good soldier? हम भी सिपाही है, लेकिन अच्छे सिपाही, अच्छे सैनिक का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? Paul was seeking a good soldier who just not fight but he won even. पौलुस ऐसे एक अच्छे योद्धा को ढूंढ रहा था जो केवल लड़े ही नहीं लेकिन जीते। And he says, join me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. और उसने कहा कि यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की तरह तू मेरे दुखों में सहभागी हो जा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। I am a soldier and I am suffering for Christ. मैं सिपाही हूँ और मैं मसीहा के लिए दुख उठा रहा You हूँ। to be a good soldier for Jesus Christ. और तू भी यीशु मसीह के लिए अच्छा सिपाही बन। Philippi 2:25. फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 25 वचन। When Paul heard that this Epaphroditus, he was sick, and he says to the people, yeah, Paul writes to Philippi church, जब पौलुस ने सुना कि एपाफ्रोदितुस वह बीमार था, और तब पौलुस ने फिलिपी के लोगों को लिखा, but I thought it necessary to send back to you this Epaphroditus, my brother. He is a co-worker and he is a fellow soldier even of mine. पर मैंने इपफ्रोदितस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, उसे आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, और Yes. आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। I wanted to send this Epaphroditus for you, and he is a co-worker and even a fellow soldier with me. मैं यह एपाफ्रोदितुस को आपके साथ भेजा, तुम्हारे पास भेजना चाहता था, और वह मेरे संगी योद्धा है और मेरे साथ सहकर्मी है। But today if we see any soldier, लेकिन आज यदि हम कोई योद्धा को देखें, today people wearing white shirt and red and something blue, and that if you see that type of soldier, आज लोग सफेद शर्ट पहनते हैं और कंधे पर कुछ लगाते हैं टोकन जैसा। यदि ऐसे सिपाही को आज हम देखें, then we say there band people are coming. Some band baj, some orchestra person are coming. तो उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई बैंड बाजा वाले लोग आ रहे हैं। We never call them soldier. They will fight for Jesus Christ and they will now cast out demon. We never saw like that. वे लोग यीशु मसीह के लिए लड़ेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे
उस तरह से हमने कभी उनको देखा नहीं, योद्धा के रूप में कभी देखा नहीं। But Paul, he's preaching, he's saying that I wanted to send Epaphroditus. He is a fellow servant, fellow warrior, soldier. लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं एपाफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजना चाहता था, जो मेरा सहकर्मी है और मेरे साथ योद्धा है। So Paul, whenever he saw a good Christian person, he said he's a warrior, he's a soldier. तो जब पौलुस ने कोई अच्छे मसीही को देखा तो उसे कहा कि वह अच्छा मसीही है और सिपाही है, अच्छा योद्धा है। He should be soldier of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के सैनिक होना चाहिए। Okay, seven quality of a good soldier I find out, and I'm just we are studying. अच्छे सैनिक के 7 ऐसे गुण धर्म है, चिन्ह है जो मैंने ढूंढ निकाले हैं और उसके बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। Soldier should be cruel. He look like a cruel person. सैनिक जो होता है वह निर्दयी के जैसा दिखता है, निर्दयी व्यक्ति के समान। Because he have to obey each commandment of the master or the captain. क्योंकि उसे उसका जो मालिक होता है या जमादार होता है उसकी हर एक आज्ञा का पालन करना We पड़ता है। know Roman soldier. हम रोम के जो सैनिक होते हैं उनको जानते We हैं। know, we read in John 19:23 when Jesus Christ was hand over to this soldier, they crucified Jesus Christ and even those two thieves. हम जानते हैं कि जब लोगों ने यीशु मसीह को यह सिपाहियों के हवाले सौंप दिया तो यह सिपाहियों ने यीशु मसीह को और वह चोरों को भी वधस्तंभ पर लटका दिया। You cannot nail anyone's hand with hammer. आप हथौड़ा लेकर किसी के हाथों में खिले नहीं ठोक सकते। You cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। But this soldier, they seem as cruel people. लेकिन यह सिपाही लोग ऐसा करते हैं और तब वे लोग निर्दयी दिखते हैं। And verse 34 says, और 34वां वचन कहता है, when the soldier, they went out to see is this thief and Jesus Christ they are died or they are living, they went to search to look for that. सिपाहियों ने सोचा कि यीशु मसीह और चोर वे मर गए हैं कि नहीं, वह देखने के लिए वे गए। And they came to Jesus Christ and they pierced his side with spear. और सिपाहियों यीशु मसीह के पास आए और बर्छे से यीशु मसीह को उसकी कोख को बेधा। They did it simply. उन्होंने ऐसे साधारण रीति से कर दिया। And immediately blood and water flowed out. तब तुरंत ही लहू और पानी निकला। So we see such a cruel soldier. They are doing just simple as their job. तो हम ऐसे निर्दयी सैनिकों को देखते हैं जो उनका काम साधारण रीति से कर रहे हैं। Acts 23 and verse 10. प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 10वां वचन। There was great at Paul time. There was a great argument. There was discussion, and the commanding officer, fearing that Paul would be torn in pieces by them, command the soldier to go down and take him by force. So we see soldiers were sent when the people were gathered to kill Paul. तो जब पौलुस के समय में वाद विवाद हुआ और बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े कर देंगे वहां पर अपनी पलटन को आज्ञा दी। तो हम देखते हैं कि सैनिक लोग जब झगड़ा होता है तो वहां पर इकट्ठा होते हैं संभालने के लिए। Soldiers, they don't fear crowd. और वे लोग भीड़ देखकर डरते नहीं। They went in and they brought forcefully this Paul out. वह भीड़ में वह सैनिक गए और जबरदस्ती से पौलुस को वहां से बाहर निकाला। So they fear of nothing. तो सैनिक किसी से नहीं डरते। We know when Abraham was commanded to give his son, he took that knife and he was about to kill his son. हम जानते हैं कि इब्राहिम को ऐसी आज्ञा दी गई कि अपने बेटे का बलिदान करे तो उसने छुरा लिया और बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। So soldier, they fear nothing, they can do anything. तो सैनिक किसी से डरते नहीं और वे कुछ भी कर सकते हैं। So they are put at border, we know. इसीलिए उनको सरहद पर उनको देश की सरहद पर रखा जाता है, हम जानते हैं। So if you are a soldier, you should not afraid of anything. तो यदि आप सैनिक हो तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। Praise Lord.
परमे प्रभु का महिमा हो। Second thing, दूसरी बात, if you are a soldier, if you want to be a good soldier, you should be full of strength. और यदि आप एक अच्छे सैनिक बनना चाहते हो तो आप शक्ति से सामर्थ्य से भरे होने चाहिए। We know when this soldier, they came to both thief to inquire that they are dead or not. दोनों चोर मर गए हैं या नहीं यह जानने के लिए यह सैनिक जब आए, They went they near to this thief and they broke legs तब वे of चोर this both thief. तब वे दोनों चोरों के पास गए और दोनों की टांगे तोड़ दी। John 19 verse 32. यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 32वां वचन। We see they have power. हम देखते हैं कि उनके पास शक्ति होती है, सामर्थ होता है। So good soldier have a good body even. तो अच्छे सैनिक का अच्छा शरीर भी होता है। 1 Samuel 17 verse 51. At David time in when Palestine they stood against Israel and they were about to battle. दाऊद के समय में जब फलिस्ती लोग इजराइल के सामने इकट्ठा हुए युद्ध करने के लिए, 1 Samuel 19:51. पहले समूएल की किताब 17 chapter verse 51. पहले समूएल की किताब 17वां अध्याय 51वां वचन। And we know the story about Goliath and David. और हम गोलियात और दाऊद की कहानी जानते हैं। And there when this David and he swing his sword, and here it says on the middle of the eye that stone, और जब दाऊद ने that stone hit that Goliath and he fall down. और दाऊद ने जब अपनी गुफन घुमा के वह दोरी से पत्थर को मारा गोलियात को, तो उसकी दोनों आंखों के बीच में लगा। And David ran and stood over him, this Goliath. और दाऊद दौड़कर गया और गोलियात के ऊपर खड़ा हो गया। He grabbed the Philistine sword and pulled it from his sheath and killed him. और उसने वह फलिस्ती के तलवार उसके म्यान में से बाहर निकाली और उसको मार डाला। And he cut off his head और उसके with that Goliath sword. और वह गोलियात के ही तलवार से उसका सर काट डाला। So we see this David, a strong man. तो हम इस दाऊद जो एक शक्तिशाली व्यक्ति को हम देखते हैं। 1 Timothy 4:8 Paul says that body exercise is profit little bit. पहले तिमोथी का पत्र 4 अध्याय 8वां वचन पौलुस कहता है कि शारीरिक कसरत कुछ हद तक जरूरी है और फायदेमंद है। And in Ephesians 5:29 it says take care of your own body. और एफएसी का पत्र 5वां अध्याय 29वें वचन में ऐसा कहा गया है कि अपने शरीर की संभाल रखो। For no one ever yet hate his own body, but everyone feed his body and care for it. क्योंकि कोई भी अपने शरीर से नफरत नहीं करता, लेकिन उसकी संभाल रखता है और अपने शरीर को खिलाता पिलाता है। So a soldier have to feed his body. He should be maintain his body to go and preach long. तो सैनिक को अपने शरीर की संभाल रखनी चाहिए, उसको तंदुरुस्त रखना चाहिए ताकि वह ज्यादा समय तक प्रचार कर सके। Amen. Amen. So he can sit and he can preach much. ताकि वह बैठ सके और ज्यादा प्रचार कर सके। If your spirit is strong, but if your body is weak, you cannot preach long. यदि आपका आत्मा मजबूत हो और आपका शरीर दुर्बल हो जाए तो आप लंबे समय तक प्रचार नहीं कर सकते हो। Lord Jesus said to Peter in John 21:18, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 18वें वचन में, Peter, I say to you truly, truly, when you were young, you dressed yourself and walked where you desired, wherever you want to go, you went. कि पतरस मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था जा सकता था, But when you will be old, परंतु जब तू बुढ़ा होगा you will be stretched forth your hand, and another will dress you and will bring you where you don't want, you didn't desire. तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। So when a person is old, he cannot go here and there. तो जब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो वह यहाँ वहां नहीं जा सकता। Even God say go and preach there. He will say
Lord, I am not able to even stand. यदि परमेश्वर भी कहे कि वहां जाकर तू प्रचार कर, तो भी वह जवाब देगा कि प्रभु परमेश्वर, मैं वहां नहीं जा सकता, नहीं खड़ा हो सकता। No health, no gospel. You cannot preach gospel. यदि तंदुरुस्ती नहीं है तो कोई सुसमाचार भी नहीं, आप सुसमाचार नहीं सुना सकते। This is the truth. यह सत्य है। Galatians 4:13, Paul says, गलाती का पत्र 4 अध्याय 13 वचन पौलुस कहता है, you know, O Galatian people, in my weakness of my flesh, I proclaim gospel first to you. I came first to you to preach gospel. कि हे गलाती के लोगों, तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। Because I was not able to then go and preach or go for a long journey. क्योंकि मैं बहुत लंबी मुसाफरी में नहीं जा सकता था और प्रचार नहीं कर सकता था, इसीलिए So I came first to you and I finished preaching. इसीलिए पहले मैं तुम्हारे पास आया और वहां प्रचार का काम पूरा किया। 1 John 3, third chapter, okay, yes, third chapter and verse 1 and 2. पहले यूहन्ना का पत्र उसका 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। Here John, apostle, Lord's disciple says, dear friend, I pray that you are doing well in every way. यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह का चेला ऐसा लिख रहा है कि हर प्रकार से तुम अच्छा कर रहे हो, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हर प्रकार से तुम अच्छे काम करो। And that you are healthy just as your soul is healthy. 3 John 1 and 2 verse. माफ करना, 3 यूहन्ना का पत्र पहला और दूसरा वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Amen. Amen. You be healthy. कि तू तंदुरुस्त रहे, So चंगा रहे। soldiers should be healthy so that God can send him. तो सैनिक तंदुरुस्त होने चाहिए ताकि परमेश्वर उनको भेज सके। Amen. आमेन। So good soldiers should have a good health. तो अच्छे सैनिक की अच्छी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। So daily exercise somewhat. तो कुछ हद तक रोज थोड़ी थोड़ी कसरत किया करो। Amen. आमेन। Be a good soldier. अच्छे सैनिक बनो। Third thing, तीसरी बात, soldier should not sleep more time. He should not spend his more time in sleeping. सैनिक को अपना ज्यादा समय सोने में नहीं बिताना We चाहिए। know our God, he never stumble nor slip. In Psalm 121 and verse 4 it says like this. हम जानते हैं भजन संहिता 121 उसका 4 वचन में कि हमारा परमेश्वर कभी उगता नहीं, ना कभी सोता है। Amen. आमेन। Why he doesn't sleep? वो सोता क्यों नहीं? Because there is enemy and they will attack my people. क्योंकि वह परमेश्वर जानता है कि दुश्मन है और वह दुश्मन मेरे लोगों पर प्रहार करेंगे। He is every time alert. इसीलिए परमेश्वर हर बार चौकन्ना रहता है। Jesus scolded his disciple when he came back and saw sleeping. यीशु ने वापस आकर जब अपने चेलों को सोते हुए देखा, तो यीशु ने भी अपने चेलों को डांटा। And he said, you love sleeping? और यीशु ने You love कहा to sleep? कि तुम सोना पसंद करते हो। Matthew 26:40, Jesus found that this disciple sleeping and he said, what could you, sorry, why can't you why can't you pray and watch? मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय Not that word. Yes. 26वां अध्याय 40वां वचन। फिर चेलों के पास यीशु ने आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? तुम सोना चाहते हो? Just for 1 hour, can't you open your eye and watch? क्या 1 घंटे के लिए आप अपनी आंखें खुली रखकर जाग नहीं सकते? But we can see people, they are sleeping. लेकिन हम लोगों को देख सकते हैं कि वे सो रहे हैं। They cannot just be awake for 1 hour. They cannot listen. They cannot bear 1 hour. वे केवल 1 घंटा सह नहीं सकते, 1 कलाक के लिए वे जागते नहीं रह सकते। Be a good soldier. अच्छे सैनिक बनो। Amen. आमेन। Jesus came back and saw disciples sleeping. यीशु ने वापस आकर देखा कि चेले सो रहे हैं। And Jesus said,
I'm lying, but Jesus said, Jesus said, did you went job today? मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यीशु ने ऐसा पूछा शायद कि क्या तुम आज नौकरी गए थे? You have been with me all the time. पूरा समय तो तुम मेरे साथ रहते हो। I didn't send you to job. मैंने तुम्हें नौकरी पर तो भेजा नहीं था। I didn't sleep, you didn't sleep. मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोया तो तुम मत सो। Why you are so much tired? तो तुम इतने थके क्यों हो? What happened if someone sleep? यदि कोई सो जाता है तो क्या होता Matthew है? 24:43, Jesus gave a parable. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 23वां वचन, यीशु ने एक दृष्टांत कहा। Further in verse 43, your Lord says, 24वां अध्याय और उसके 43वें वचन में आगे प्रभु ने कहा, Oh people, you should know this, that if the master of a house has known in what time of night the thief come, he would be watched and not have allowed his home to be broken into. हे लोगों, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता, चोरी होने ना देता। So if you don't know the time of a thief, then you have to be alert every time. तो यदि आप चोर का समय नहीं जानते हो तो हर घड़ी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। Soldier, they don't sleep when they are doing job. सैनिक लोग जब अपने काम पर होते हैं, नौकरी पर होते हैं, तब कभी सोते नहीं। When Peter was put in jail, he was put in prison. जब पतरस को कैद खाने में डाला गया, This Peter was sleeping. तो पतरस सो रहा था। But those soldiers, they were watching and they were alert. They were outside, keeping watch over this Peter. लेकिन वहां पर कैद खाने में जो सिपाही थे, वे लोग बाहर थे, जागते थे और पतरस पर नजर रखे थे। In Acts 12 and verse 6 it says like that. प्रेरितों का काम 12वां अध्याय 6ठे वचन में ऐसा कहा गया है। This disciple was sleeping, Peter was sleeping, but soldiers were watching him. यह चेला सो रहा था, पतरस सो रहा था, लेकिन वे सिपाही लोग पतरस की देखभाल कर रहे थे, उसे देख रहे थे। Here it says, Peter was sleeping between two soldiers. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि दो सिपाहियों के बीच में पतरस सो रहा था। If Lord is keeping watch, we have to sleep. यदि प्रभु संभाल रख रहा है, देख रहा है, तो हमें सोना है। But if he has kept us as a watchman, लेकिन यदि प्रभु ने हमें दरवान या सिपाही बनाकर रखा है, Ezekiel was a watchman over Israel. यहजकेल इज़राइल के ऊपर Yes. पहरेगीर था, दरवान था। And so Lord said, whenever you see enemy coming or any curse or any warning, then you should alert Israel people. तो प्रभु ने कहा कि जब भी तू दुश्मनों को आते हुए देखे या युद्ध होते हुए या कोई श्राप आते हुए देखे, तो तू इज़राइल के लोगों को चेतावनी देना। That's written in Ezekiel 33 and verse 7. यह बात लिखी गई है यहजकेल की किताब 33वां अध्याय 7वें वचन में। 1 Thessalonians 5 and verse 6 it says, पहले थेस्सलोनिका का पत्र 5वां अध्याय 6ठा वचन कहता है, My brother Paul says, let us not sleep as other. पौलुस कहता है कि हे मेरे भाइयों, आइए हम औरों की नाई सोते ना रहे, But let us watch and be sober. पर जागते और सावधान रहे। So good soldiers should not sleep. तो अच्छे सिपाही को सोना नहीं When he चाहिए। read Bible, जब वह बाइबल पढ़े, when he go for preaching, जब वह प्रचार करने के लिए जाए, when he is listening word of God, और जब वह परमेश्वर के वचन को सुनता हो, he should not sleep. तब उसे सोना नहीं चाहिए। He should be alert. उसे सावधान रहना He should चाहिए be watchful. और उसे जागते रहना चाहिए। Amen. आमेन। So good soldiers should not sleep. तो अच्छे सिपाही को सोना नहीं चाहिए। Ministry, जब वे सेवकाई में होते हैं तब, because they are soldiers there. क्योंकि सेवकाई में वे सैनिक है। Amen. When you are worshiping Lord, you are doing a job. जब आप प्रभु की आराधना कर रहे हो तो आप एक काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। Amen. आमेन। At job, don't sleep. तो नौकरी के समय पर सोओ मत। You are spending your time with Lord. आप आपका समय प्रभु के साथ बिता रहे हो। Fourth thing, चौथी बात, a good soldier, when he is at Lord's job or is doing, he's have a responsibility in the field. अच्छे सैनिक जब प्रभु के काम में या नौकरी में होता है
या उस काम में उसकी वह जिम्मेदारी लेकर बैठा होता है, then he don't involve in the worldly matter. तो फिर वह संसार की बातों में फिर भाग नहीं लेता। We know soldier when they are at the border, they don't have any relationship with their family. हम जानते हैं कि जो सैनिक सरहद पर रहते हैं उनका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। 2 Timothy 2:4 Paul says the same thing. वही बात पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी का पत्र 2 अध्याय 4 वचन में। For a good soldier he writes this thing. और अच्छे योद्धा के लिए, अच्छे सैनिक के लिए पौलुस यह बात लिखता है। No one going as a soldier entangles himself with the affair of life. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपनी भर्ती तो संसार के कामों में नहीं फंसता, For he may please him who has given order, ताकि so that he can please the one who has given them order. ताकि अपने भर्ती कराने वाले को वह प्रसन्न करे। To please the captain, he never involved or he be busy with another thing. अपने जमादार को खुश करने के लिए वह कोई दूसरे काम में नहीं जाता है और दूसरे काम में व्यस्त नहीं रहता है। He don't spend his time with family. परिवार के साथ समय बिताने में वह खुश नहीं होता है, Because he is busy with the captain to please the captain. क्योंकि वह अपने जमादार के साथ व्यस्त रहता है अपने जमादार को खुश करने के लिए। When we know the story of David, हम दाऊद की कहानी जानते हैं। when he seen Uriah's wife, जब with उसने Uriah's wife, उरिया की पत्नी के साथ पाप किया, then he called Uriah from the field, from the battle. तब दाऊद ने उरिया को युद्ध मैदान में से बुलाया। 2 Samuel 11 chapter 8 to 11 I am reading for you. दूसरे समूएल की किताब 11वां अध्याय 8 से 11वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। We see Uriah was a soldier, हम देखते हैं कि उरिया एक योद्धा था and David called him and said, go and enjoy your family. और दाऊद ने उसे बुलाकर कहा कि जा और अपने परिवार के साथ आनंद कर। Verse 8, 8वां वचन, see a good soldier. यहाँ देखो एक अच्छे योद्धा को। When he said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So Uriah left the palace and gift from the king followed him. जब तब दाऊद ने उरिया से कहा अपने घर जाकर अपने पांव धो, और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। So this king sent some gift to Uriah so that he can go and home and enjoy vacation. तो यह राजा ने उरिया के लिए कुछ इनाम भेजे ताकि वह अपने घर जाकर आनंद करे, But छुट्टियों का आनंद करे। But this soldier Uriah, he slept at the door of the palace with all the master servants. He didn't went back to his home. परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर नहीं गया। Verse 10. 10वां वचन, When David was told, he heard that this Uriah did not go home, he called Uriah and questioned him. जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया को वापस बुलाया और सवाल किया, Have you not just come from journey? Why did you not went to home? क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? I call you from that battle, from that war, and I want to send you home. मैंने तुझे उस युद्ध से वापस बुलाया ताकि मैं तुझे अपने घर भेज सकूं। Go and rest. तू तेरे घर जाकर आराम कर Spend time with your family. और अपने परिवार के साथ समय बिता। But see the answer of Uriah, verse 11. लेकिन 11वें वचन में उरिया का उत्तर देखो। The ark and the Israel and Judah are dwelling in tents, and my master Joab and his soldiers are camped in the outfield. How can I go home, eat, drink, and sleep with my wife? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? So there are many soldiers who are dying for Lord. तो ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जो प्रभु के लिए मर रहे हैं। How can we enjoy life? हम जीवन का आनंद कैसे उठा सकते हैं? As surely as you live and as your soul lives, I will not do such thing. This soldier replied. यह सैनिक ने जवाब दिया, तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। So never
when you are in ministry, never go to home, तो जब आप सेवकाई में होते हो तो कभी भी घर मत जाओ, so that your Lord be pleased with you. ताकि आपका प्रभु आपके साथ प्रसन्न हो When you are जाए। reading Bible, close your door, don't talk with anyone. जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो अपना दरवाजा बंद करो, किसी के साथ बात मत करो। When you are doing ministry, just concentrate on your ministry. और जब आप सेवकाई कर रहे हो तो आप केवल सेवकाई पर ही पूरा ध्यान लगाओ। Be a good soldier for Lord. प्रभु के लिए अच्छे सिपाही बनो, Spend time with Lord. प्रभु के साथ समय बिताओ। Amen. Amen. 2 Timothy 2nd chapter verse 4. दूसरे तिमोथी का पत्र 2 अध्याय 4 वचन। Again, I am reading the same thing. फिर से मैं वही बात पढ़ रहा हूँ। No man that war entangles himself with the affair of his life. जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है वह संसार के कामों में नहीं फंसता। No man being a soldier of God, being a soldier of God who is on duty, he is on duty, so he cannot entangle himself with secular business. जो व्यक्ति परमेश्वर का सिपाही होता है उसके साथ काम में, परमेश्वर के साथ काम में लगा हुआ होता है, वह संसारिक कोई भी काम या नौकरी पर नहीं लगता है। If we take leave at that job time, यदि नौकरी के समय में यदि वह छुट्टी ले ले he cannot please the king. तो फिर वह राजा को खुश नहीं कर सकता। So good soldier, he concentrate with for the war, about war. तो अच्छा सैनिक केवल युद्ध का ही ध्यान रखते हैं, युद्ध पर ही नजर रखते हैं। Amen. Amen. Fifth thing, पांचवी बात, they obey without fail. और निष्फल ना होते हुए वे आज्ञा पालन करते हैं। Amen. आज्ञा पालन इस तरह से करते हैं कि वे निष्फल ना हो जाए। Whenever there is command, जब भी आज्ञा आती है they say yes sir. तो वे कहते हैं हाँ मालिक। Every time they say yes sir. हर बार वे कहते हैं हाँ मालिक। So these soldiers is a good obedience, तो good, yes. good nature of their. तो ऐसे सिपाहियों का यह अच्छा स्वभाव है और अच्छा आज्ञा पालन है। And so the captain or the one who is in charge, they praise this type of soldiers. तो उनका ऊपरी जो होता है या उनका मालिक जो होता है वह मालिक ऐसे सिपाहियों की प्रशंसा करता है। They are pleased. The captain is pleased with this such type of soldiers. उनके आगेवान, उनके जमादार इस तरह के सैनिकों के साथ खुश होते हैं। We know one story of in Matthew 8 chapter verse 9, there was one Roman army officer. हम एक कहानी जानते हैं रोमियो का मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 9वां वचन। यहाँ पर एक रोमन सिपाही होता है, And no, officer, he came to Lord Jesus Christ for his servant was sick. एक रोमन सूबेदार होता है, वह यीशु मसीह के पास आता है क्योंकि उसका सिपाही बीमार होता है। He said, Lord Jesus, come to my roof and heal my servant. उसने कहा कि प्रभु यीशु मेरे घर पर आ और मेरे सेवक को, मेरे सिपाही को तू चंगाई दे। But he said, लेकिन उसने कहा I am not worthy that I call you and you come. उस सूबेदार ने कहा कि मैं तुझे बुलाऊं और तू आ जाए, इतना योग्य मैं नहीं हूं। I don't want to command you. मैं तुझे आज्ञा देना नहीं चाहता And I am not worthy that you come under my roof. और तू मेरे छत के तले आए, इतना योग्य मैं नहीं हूं। But just speak a word so that my servant be healed. पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो So जाएगा। this officer is talking to Jesus Christ. तो यह सूबेदार यीशु मसीह के साथ बात कर रहा I है don't want that you come to my house. कि तू मेरी छत तले आए, ऐसा मैं नहीं चाहता। For I myself am a man under the orders of other, with soldier under me. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। I am under control and there are people who are under my control. मैं किसी और के पराधीन हूँ और दूसरे सिपाही मेरे अधीनता में है। If I say one man to go, he will go. And I will say another man, come. And he will say, yes sir. और जब मैं एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और मैं दूसरे को कहूँ कि आ जा तो वह कहता है हाँ मालिक। They do what I say. मैं जैसा कहता हूँ वैसा वे करते हैं। And I don't want that. Come. I call you. I say to you, come, and you come.
और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे ऐसा कहूँ कि तू आ जा और तू आ जाए। I don't want to command you. मैं तुझे आज्ञा देना नहीं चाहता। And Jesus was surprised with this officer. और इस सूबेदार को देखकर यीशु को आश्चर्य हुआ। Verse 10. 10वां वचन। And he said, और यीशु ने कहा, Jesus was impressed by this person, for he has such a faith in Jesus' word. यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया क्योंकि इस व्यक्ति का इतना विश्वास यीशु में था और उसके शब्द में था। Jesus, if he command everything, yeah, the thing will happen. यीशु यदि तू आज्ञा कर दे या कुछ बोल दे तो ऐसा हो जाएगा। The sickness will leave if you say go. यदि तू ऐसा कह दे कि जा तो वह बीमारी निकल जाएगी। Without doubt, this officer requests Jesus to speak word. और संदेह के बिना यह सूबेदार ने यीशु मसीह को विनती की कि तू केवल शब्द बोल। Speak and my servant will heal. Be healed. तू बोल और मेरा सिपाही अच्छा हो जाएगा। I have not found so great faith, not in Israel, Jesus said. यीशु ने कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। So this officer was in someone's control. He was subject to someone. तो यह सूबेदार किसी के पराधीन था, किसी के नियंत्रण में था। And also he had people under in charge. और उसकी अधीनता में भी दूसरे सिपाही थे। And if he say go, the person will go. और यदि वह सूबेदार कहे कि जा तो वह व्यक्ति जाता था। So Paul also writes this thing in 2 Timothy 2:4 that if you want to please your master, you have to obey the commandment. तो पौलुस भी तिमोथी को ऐसी चेतावनी देता है कि यदि तू अपने प्रभु को, मालिक को खुश करना चाहता है, obey the commandment. तो उसकी आज्ञाओं का पालन कर। So the true soldier will seek to please his officer. तो सच्चा सैनिक अपने सूबेदार को, अपने मालिक को खुश करने का ही ढूंढता रहेगा। Amen. आमीन। Sixth thing, छठी बात, the soldier he get wages from the king. और सिपाही को राजा की ओर से इनाम या उसका पगार मिलता है। They don't fight with their own money, वे अपने own earning. वे अपनी कमाई से अपना पैसा लगाकर नहीं लड़ते। They are happy with their authority. वे अपने अधिकार के साथ खुश रहते हैं। And they depend not on the people, but they trust on the king. और वे लोगों पर भरोसा निर्भर नहीं रहते हैं, लेकिन राजा पर भरोसा रखते हैं। 1 Corinthians 9:7 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 9वां अध्याय 7वां वचन कहता है, Paul says, does anyone ever serve as a soldier at his own expense? पौलुस कहता है कि कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है। So soldier never have to pay for his own food and clothes. तो सिपाही The authority provide all things. तो सिपाही को अपने कपड़े या खाने के लिए अपने पैसे कभी नहीं देने पड़ते। उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वे लोग सब कुछ देते हैं। There are today foolish people who for their fame and name they spend their own property. आज ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो अपने खुद की प्रसिद्धि के लिए अपना खुद का पैसा लगाते हैं और अपनी संपत्ति का खर्चा करते हैं। But Jesus is the king. लेकिन यीशु राजा है And he give the wages to his soldier. और यीशु अपने सिपाहियों को उनका बदला देता है, पगार देता So है। a good soldier, he's happy with the wages that that master gives. तो जो अच्छा सिपाही होता है वह उसका मालिक जो उसे मजदूरी देता है उसमें खुश रहता है। Matthew 10 chapter and verse 9. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन। Jesus called his disciples and sent them out to preach. यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उनको बाहर प्रचार करने के लिए And he भेजा। said, take along neither gold nor silver nor copper in your belt. और यीशु ने उनसे कहा कि अपने पटकों में न सोना और न रूपा और न तांबा रखना। Verse 10. 10वां वचन। Nor money for your journey, neither two clothes, neither shoes, nor your staffs. और ना पैसा और मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो। For the workman is worthy for his meat. क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। The laborer deserves his portion. Lord is there to give his part. मजदूर जो होता है वह अपने हक के योग्य होता है, उसके लिए प्रभु है। If the battle is of Jehovah, यदि युद्ध यहोवा का है तो Lord will provide the soldier.
तो फिर प्रभु अपने सिपाहियों का सब पूरा करेगा। John said that, "Oh soldier, you have to be happy with what you are having. You are receiving from your master." Yes, Luke 3rd chapter verse 14. Yes, John said like this. लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 14 वचन, यूहन्ना ने ऐसा कहा और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। Amen. आमेन। So we should, the soldier is happy what he has. तो सिपाही के पास जो होता है उसमें वह खुश रहता है। Amen. आमेन। 1 Corinthians 9 again 7. फिर से पहला कुरिन्थी का पत्र 9वां अध्याय 7वां वचन, If you are soldier of God, यदि आप परमेश्वर के सिपाही then you हो are the army of God. तो फिर आप परमेश्वर की सेना में हो By his own charge, he will send you to war. और वह He will give you wages. और युद्ध में जब वह भेजेगा तो वह खुद आपको उसका पगार या मजदूरी देगा। Amen. आमेन। So soldier get from the Lord, तो सिपाही लोग सैनिक प्रभु की ओर से पाते हैं, because they are not the man soldier, they are soldier of God. क्योंकि वे मनुष्य के सैनिक नहीं है, वे परमेश्वर के सैनिक है। 7th thing, 7वीं बात, without weapon he is not a good soldier. और He cannot be a good soldier. हथियार के बिना कोई अच्छा सिपाही नहीं बन सकता। What are the weapons? तो फिर ये सारे हथियार कौन से हैं? Just I have studied little bit. FSC 6 chapter 12 to 18 you can read. मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है। एफएससी का पत्र 6ठा अध्याय 12 से 18वां वचन आप अपने घर में पढ़ सकते We हो। are soldiers हम सैनिक हैं and we have a spiritual warfare. और हमारा आत्मिक युद्ध है। Paul says we wrestle not with flesh and blood, but we fight against principality, we fight against powers, we fight against those rulers of the darkness of the world, we fight against spiritual wickedness that are in the heavenly places. पौलुस कहता है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। There are two type of weapons. तो दो तरह के हथियार होते हैं, Defending weapons and attacking weapon. अपने बचाव करने के हथियार और प्रहार करने के हथियार। Verse 11, 11वां वचन, Paul says two things. पौलुस दो बातें कहता है। First thing, put on the whole armor of God. This should be on your body. पहली बात यह कही गई है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यह सारे हथियार आपके शरीर पर होने चाहिए, So that you may be able to stand against the wills of devil. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। First thing of a good servant, he should be armed properly, whole army suit he should be suited with. अच्छे सेवक की पहली अच्छी बात यह होनी चाहिए कि उसका पूरा बख्तर अच्छे से बांधा हुआ चाहिए, उसका शरीर अच्छे से हथियार से बांधा हुआ He चाहिए should be full of arms. और वह पूरी रीति Whole से arm of God he should wear. परमेश्वर के पूरे हथियार से उसने अपने आप को बांध लेना चाहिए। Second thing, दूसरी verse बात, 15. 15वां वचन, He should be ready for good news too. और उसे सुसमाचार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। Amen. आमेन। And your feet stood with the preparation of gospel of peace. 15 verse. और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, Wearing all and be ready with gospel. सब कुछ पहनकर और सुसमाचार के साथ तैयार रहना। Whenever you find a person, a needy person, hungry soul, thirsting for the Lord, you go and meet him. जब भी आप कोई जरूरियातमंद व्यक्ति को देखते हो, प्रभु के लिए प्यासे, आप प्रभु को ढूंढने वाले व्यक्तियों को देखते हो, तो आप जाकर उनको खिलाते हो। Who are lost their hope of life. जो लोगों ने अपने जीवन की आशा खो दी है, ऐसे लोगों से जाकर You go and serve them, you save them. आप जाकर उनकी सेवा करते हो और उनको बचाते हो। So soldier give good news to the people who are dying. तो जो लोग मर रहे हैं, ऐसे लोगों को सैनिक लोग सुसमाचार देते हैं And they bring them out from that death. और उन लोगों को मृत्यु में से सैनिक बाहर निकाल लाते हैं। And he fight with the devil. और सैनिक फिर शैतान के साथ लड़ते हैं। Fight with the devil and that fallen angel.
और शैतान के साथ और गिरे हुए उन दूतों के साथ लड़ते हैं by wearing whole armor of God. परमेश्वर का पूरा कवच पूरा बख्तर पहनकर And with good news, they go and save the souls. और सुसमाचार के साथ वे जाते हैं और आत्माओं को बचाते हैं। So two things they do. तो दो काम वे करते They हैं, fight with the devil वे शैतान के साथ लड़ते हैं and save the people who are of God. और जो परमेश्वर के लोग हैं ऐसे लोगों को बचाते हैं। Amen. आमेन। So good soldier, they fight with the enemy तो अच्छे सिपाही दुश्मनों के साथ लड़ते हैं and they save the people. और लोगों को वे लोग दूसरे लोगों को बचाते हैं। We know when there is something, when there is a war in the city, हम जानते हैं कि जब शहर में कोई झगड़ा हो जाता है then the people, the head, they call the army to settle down the city problem. तो फिर जो मुखिया होता है वह सेना को बुलाता है कि सेना आकर जो समस्या है उसका समाधान कर दे, So that they can make peace in the city. ताकि सेना आए तो पूरे शहर में शांति का माहौल बने। So the army don't fight in the city, in the area. तो सेना जो होती है वह अपने शहर में नहीं लड़ती, They just go to save the people, वे केवल लोगों को बचाने के लिए जाते but they हैं। fight at the border. लेकिन यही सेना के लोग सरहद पर लड़ते They हैं, help the nation, वह देश की मदद करते हैं but fight with the enemy. लेकिन दुश्मनों के साथ लड़ते हैं। So good soldier must arm with all the weapons. तो अच्छे सैनिक को सारे हथियारों से अपने आप को बांध लेना चाहिए। Attack weapons and defense weapons they should wear. उन प्रहार करने के हथियार और बचाव करने के हथियार दोनों हथियार उनके पास होने चाहिए। Sword used for attack. तलवार का उपयोग मारने के लिए किया जाता है। Word of God should be put in your mouth. परमेश्वर का वचन आपके मुख में रहना चाहिए। There are things, breastplate, that people don't injure you. It is put like for that. ऐसे सारे हथियार है जो है बख्तर होता है जिससे अपने छाती पर कोई हानि ना पहुंचे। And shield to save from the attack of enemy. विश्वास की ढाल होती है जो दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। Helmet to save that no one snatch your salvation. और उद्धार का टोप कि ऐसा टोप जो कोई छीन ना ले। No one make you fall. आपको कोई गिराए नहीं। You don't lose your head, so there should be salvation upon you. आप आपके सिर को ना गवा दो, टोप को ना गवा दो, इसीलिए आपके ऊपर उद्धार रहता है। Good soldier is dressed with all that weapon. अच्छा सैनिक अपने आप को ये सारे हथियारों से ढांप के रखता है And is ready 24/7. और वह 24 घंटे 7 दिन निरंतर तैयार रहता है To save and to war as order. लोगों को Go for बचाने war के as लिए, order. लोगों को बचाने के लिए और आदेश मिलने पर युद्ध करने के लिए जाने के लिए। Amen. आमेन। So we Christian people are soldiers. तो हम ईसाई लोग मसीही लोग सैनिक हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। He is the captain वह सूबेदार है and he has called us in his army. और उसने हमें उसके सैन्य में बुलाया है। So be good soldier. तो अच्छे सैनिक बनो, Take care of your health अपनी तंदुरुस्ती की संभाल रखो and listen the order. और जो आदेश मिले उसे सुनो। To please the king, do as he order राजा को खुश करने के लिए जैसा वह आदेश दे वैसा करो and be ready to fight with the enemy. और दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहे। And so wear all that what he has commanded. तो उसने जो कुछ भी आज्ञाएं दी है वह सारी बातों को पहन लो। Lord Jesus Christ, we worship you. प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you for you have select in your army. आपने आपके सेना में हमें चुना है, इसीलिए आपका धन्यवाद। And you desire that we be a good soldier. और आप इच्छा रखते हो कि हम अच्छे सिपाही बने। And we have heard the message. और हमने संदेश सुना है। And what is the requirement to be a good soldier? Lord, help us to do so.
और अच्छे सैनिक बनने के लिए जो कुछ भी जरूरियातें होती है उसके लिए प्रभु हमारी मदद करो। Let your people once again listen the message आपके लोग फिर से एक बार इस संदेश को सुने and correct themselves और अपने आप को ठीक करें and live a good, die as a good soldier. और एक अच्छे सैनिक बनकर मरे। Lord, help us to do so. प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी मदद करो। Bless each one हर एक को आशीर्वाद दो who are watching, who are listening. जो लोग देख रहे और सुन रहे हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में I say Amen. मैं आमेन कहता हूँ। Let's pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come, आपका राज्य आए, thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread हमारे दिन भर की रोटी आज हमें and दो forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy है, is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है, forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमेन। Shalom to each one. हर एक को शांति God मिले। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. प्रेज गॉड।